हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम द जोग्राफिकली सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक्स कल्चर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक परिवेश और जो है प्रो ऐतिहासिक सभ्यताओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इवन कि इंट्रेंस टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी मान्य रहेगा। ये यूपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण की तरह होगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो होगी उसके रिगार्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अराइव हेयर प्री हिस्टोरिक्स is a civilization. There is a part of the geographical setting and prehistoric culture of India. There is a most important topic is a prehistoric is a civilization. There is a most important here. What is a prehistoric civilization here? There is a most important question. The prehistoric period is that a period of our ancient past for which we do not have a written records. Therefore, our knowledge of the culture which developed in the period is the based on only the materials found in the archaeologically excavations. And the earliest as a man living during this period made tools and implement of the stone found in the surroundings, and this tool helped him to be hunt and gather of food ordered to the satisfied his hunger. Since there is earliest tools used by the humans were made of stone, and this phase of human development is known as the Stone Age. There is a Stone Age, and in this lesson we shall trace the evolution of prehistoric man from a hunt and food gatherer to be a food producer. This change did not be take a place all of a sudden and took us several 100,000 years. On the basis of their different types of tools and techniques, the stage of human development in the prehistoric period are described as the Paleolithic or Old Stone Age. There is a Mesolithic and Middle Stone Age, and the Neolithic or New Stone Age. There is a most important topic here arrive. The first civilization here is the most important here, Paleolithic culture. The Paleolithic as of civilization. There is a most important here civilization of Paleolithic. The Paleolithic civilization. What do you mean to Paleolithic civilization here? And what is the here term? The term is a Paleolithic is derived from to the Greek word paleo, which means old, and lithics is mean a stone. Therefore, the term Paleolithic as referred to the old stone age. There is an archaeologist has dated this culture to the Pleistocene and period about 2 million years ago. The Pleistocene as a period is the geologically is a period of the age when the earth as a surface was covered with ice and weather was so cold that a human or plant life could not survive. But is there tropical regions where ice melted, the earliest species of the man could be exit.
The people live near the hillocks and use only stone tools for hunting and their protection. However, the choice of the raw material used for the tool making they varied from the reasons to be reasons and depending upon its ability. The materials used was the quartz is available in their hilly area of different regions. The basalt is found in the Maharashtra, the region and the limestone in the Karnataka regions. On the basis of the nature of progress is made in tools, types and techniques. Their paleostatic culture has been to the divided into three phases. These are first year lower earlier is a Paleolithic and second year middle Paleolithic and third year upper or late Paleolithic. This is a phase cover a long period is a ranging is a broadly from to the 5 lakh to the 10,000 BC. There is a 5 lakh to the 10,000 BC. The first point here, tool of the Paleolithic period. There is a most important here point. There is a Paleolithic as a tool. There is the most important here. The main tool of lower Paleolithic phase were is a hand axe, is a cleaver and chopper. And this is called chopping tool. And this were is a rough and heavier and were made by the chopping the side of the stone. Gradually sharper and less heavy tools come to be made. The flash tools is a chopper is a pieces were to the chief tools during to the middle Paleolithic period. The tools of upper Paleolithic period is primarily consist of the warness and the scraper. There is show the figure. Let's now to discuss is a brief their chief feature and use of some of the tools mentioning above and their handwear decks and the butt and the border and the working is edge is narrow and this were used for cutting the trees or digging the roots. The cleaver had a bike-shaped edges. They are the mean to the splitting object like their trunk of trees. The chopper is where there is a massive is a core tools with the unifacious working edges and where use of the chopping purpose there is a weavings where like a flag and blades and this were used to the engravings on sharp stone, bone or rock. The scalpel is where is also made of the flax and this tool is serve the purpose of the tending work of trees and skin of animal. Here show the tools of is a parenthetics is a period. Here show the most important chopping tools and hand axes of the is a lower Paleolithic and there is a most important tool is there as tool. There is a most important here. It is a chopping tools and hand axes tools of the Paleolithic era. The next figure here shows there is a chopping tools and hand axes of the lower Paleolithic ends. There is a most important tools here show in this diagram. And also here show the chopping tools and hand axes tools of lower Paleolithic ends. There is a most important tool here is made by the stone. There is a most important for this time tools here of Paleolithic ends of lower time. The next topic is here a geographical distribution of the Paleolithic sites. There is a most important here a geographical distribution. There is geographical division also. The geographical distribution of the Paleolithic sites suggests that is a culture was spread to throughout there is a length and breadth of the Indian subcontinent. There is show the map in the northern Kashmir Valley and the Swan Valley is the Rawalpindi now to the Pakistan. The Rawalpindi is also here our time. This time is a Pakistan side as have a yard there is a Paleolithic tools. In the Rajasthan is a Paleolithic tools were found at the site along the river Luni. In the western India, Paleolithic tools were also discovered from side of the river is a Sabarmati, Mahi, and there is a tributaries is a Gujarat. In the Maharashtra, their most is important site are Nivasa, a tributary of Godavari,
and Patna in the Tapti river system. That is the most important here. In the Madhya Pradesh is a rock shelter or Bhimbetka near of Bhopal. Bhimbetka is near of Bhopal and is a Adamgarh in there is a district of Hoshangabad have had its tools from to the Prehistoric to the Mesozoic period. In the Uttar Pradesh is a Bengal Valley is a region is a borderly from Allahabad to the Varanasi. Is the most is a prominent side. It shows the human occupation of the area is a continuously form to the Paleolithic period. There is a most important here. Here the most important map here, Paleolithic side, there is a most important, there is a dark river valley and there is a Gangos, Buddha, Pushkar. There is the most important side here, Paleolithic side, there is a map. And I also show here is the most important for the Paleolithics of Asian in a map. Toward the east, Assam and the Boeing's area, including to the Meghalaya, Goro Hills, have added to the Paleolithic is artifact. Is the Paleolithic tools has also been found of various sites of Bengal, Orissa and Bihar. In the peninsular India, is the Paleolithic tools has been reported from the Andhra Pradesh and Karnataka. In Tamil Nadu, on important site in the Rampakam and Chinagupta regions. These substance of the Paleolithic cultures as was is based on mainly on the hunting animal and gathering fruits and roots. In other words, the people where is primarily is hunters and gathering with no settled or habitation. That is the most important. On the basis of the above discussion, we can conclude that a Paleolithic culture of the prehistoric is a period where while spread throughout the Indian subcontinent, the study of the tools indicate a gradually process in the tool technology, which must have lead to the better ability of resource. The next era, substance of pattern. There is a most important. There is a athletics people is a prestige to do hunting and food gathering. For their substance, they are made of simple stone tools for hunting, cutting, digging, and other purpose. There is a lead to the is a nomadic life and the migrated to place where a plant animal resource along with the water were easily available. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है जो कि हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण युग यानी पैलोथैटिक्स सभ्यता। यानी ये हमारा टॉपिक जो है भारत का भौगोलिक परिवेश और जो है प्रागैतिहासिक जो है सभ्यताओं के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक आया है पूरा पाषाण युग सभ्यताएं। कहते हैं पैलोथैटिक शब्द जो है ग्रीक शब्द पैलियो से निकला है जिसका अर्थ है पुराना और लिथिक का शब्द का अर्थ होता है पत्थर से लिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और पैलियोस का मतलब होता है पुराना। इसलिए जो है पैलोथैटिक्स युग का अर्थ हुआ पूरा पाषाण युग। कहते हैं ये समय काल बहुत ही इंपॉर्टेंट था जहाँ इंसानों ने अपना विकास का जो है शुभ आरंभ किया था। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का जो है कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत न्यूनतम युग यानी जो प्लेटोस्टीन एज को बताया है। प्लेटोस्टीन काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह बर्फ से बिल्कुल ही ढकी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां बर्फ पिघल गई थी मानव की जो है प्रागैतिहासिक जातियां जीवित रह सकती थी। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पत्थर से बने औजारों का ही प्रयोग किया करते थे। फिर भी औजार बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री का चुनाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता था और इस सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होता था। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध बेसलॉट और कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाने वाला चूना पत्थर। औजारों की सम और उन्हें गढ़ने की तकनीक की
जो है प्रतीक प्राकृतिक आधार पर जो है पैथोलिक सभ्यताएं यानी पाषाण युगीन सभ्यताओं को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो था आरंभिक अथवा पूरा पाषाण युग यानी अर्ली प्लैथिक्स कहते थे। एक जो था मध्य पाषाण युग जिसको मिडल्स प्लैथिक्स एज कहते थे, और उसके बाद था उन्नत या उच्च पाषाण युग। तो इसको 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा। देखा जाए तो हमारा पहला पॉइंट यही सी बात को दर्शाता है कि पूरा पाषाण युग यानी पैलेथेटिक्स के औजार कैसे थे। पूरा पाषाण युग चरण में मुख्य औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, गडासा और काटने के लिए औजार थे। ये औजार बहुत ही बेढंगे और भारी होते थे और पत्थरों से बनाए गए थे, और धीरे धीरे नुकीले और हल्के औजार भी बनाए जाने लग गए। तो कह सकते हो कि उस समय बनाने का जो पद्धति थी वो बेढंग था और काफ़ी हैवी होता था, क्योंकि उस समय उनको उस बात की समझ नहीं थी कि जो हमारा औजार हो कैसा हो। मध्य पाषाण युग के मुख्य औजार थे जो खरपचियों की तरह से चपटे औजार होते थे। उत्तर पाषाण युग में जो मूल्यतः जो तक्षीण बुरेंस और कुदेरने वाले स्पोल्स औजार हुआ करते थे, जो कि हम डायग्राम में भी देखेंगे। यहाँ पर आपके समक्ष जो है क्लियर दिख रहा होगा कि पूरा पाषाण युग के काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार के बनाए जाते थे। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ये बेढंगे हैं और बहुत काफ़ी हैवी भी है, और काफ़ी ये जो है उनके लिए उपयोगी सिद्ध भी होता था। तो ये औजारें साफ बताते हैं कि उनका जो टेक्निक थी बहुत साधारण थी। सिर्फ अपने बचाव के लिए इन तरह के जो है पत्थरों का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस समय उनकी इतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए इस तरह के औजार का जो है उपयोग करना एक स्वाभाविक बात बन गई थी। उसके पश्चात यहाँ पर आता है मध्य पाषाण युग के काटने वाले औजार और हाथ की कुल्हाड़ी। देखिए इसमें थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा विकसित बनाया उन्होंने। बेशक ये हैवी थी लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट था, और ये कई शेप में आपको नज़र आ रहा होगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो औजार थे उस समय के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे, और ये कई तरह के जो है उनके लिए हेल्पफुल भी था। तो इस तरह के औजार का विकास करना उनके जो है जीवन का उन्नति का पहला जो है सबूत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है उत्तर पाषाण युग के काटने वाले औजार और जो है हाथ वाली कुल्हाड़ी। देखिए ये जो था और भी विकास की जो है कगार पे वो लोग आ गए और काफ़ी जो है थोड़ा सा विकसित नज़र आने लग गया। यानी देखा जाए तो समय के साथ बदलाव होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और उनके औजार में भी इन बातों की झलक हमें साफ दिखाई देती है। अब इन औजारों की कुछ विशेषता अगर हम जानें कि आखिर इसकी विशेषता क्या थी, तो ये हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा और काम करने वाला हिस्सा पतला हुआ करता था। यानी कुल्हाड़ी जो होता था जहाँ से वो काम करते थे वो काफ़ी चौड़ा होता था, और जिसे वो काटते थे बहुत ही पतला हुआ करता था। पेड़ काटने और जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग साधारण रूप में किया जाता था उस समय। आरी का सिरा 2 भागों से बटा होता था, और इसका उपयोग पेड़ों के तनों को जो है चीरने के लिए होता था। गड़ासा का एक मुख्य औजार था जिसका काम करने का एक ही सिरा होता था, और इसे काटने का काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। बुरीन तक्ष पतली जो है खपचियों तथा ब्लेडों की तरह होती थी, और इसका उपयोग नरम पत्थरों और हड्डियों या चट्टानों पर जो है खुदाई के काम के लिए किया जाता था। छीनने वाले औजार जो है स्कोप्स भी पतली खपचियों के बने होते थे, और पैरों के छाले और जो है पशुओं और चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा छिलने के काम के लिए इसका उपयोग साधारण रूप से किया जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट औजार थे जो उस समय के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और काफ़ी उपयोगी भी थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पाषाण युगीन स्थानों के भौगोलिक विभाजन। आखिर जो है पाषाण युगीन स्थानों का भौगोलिक विभाजन क्या है, तो भौगोलिक विभाजन जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं पाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपों की संपूर्ण लंबाई चौड़ाई के विस्तार में फैली हुई थी। उत्तर में कश्मीर घाटी और रामापिंडी जो कि अब पाकिस्तान में है कि सोन घाटी में से जो है प्राचीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लूनी नदी के किनारे के स्थान पर जो है पत्थर के प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं, और पश्चिमी भारत में ये साबरमती, माही और इसकी सहयोगी नदियों के स्थलों पर जो है पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं। कहते हैं महाराष्ट्र में इसके प्रमुख स्थान रहे हैं, और गोदावरी की सहायता नदी नेवासा के पास और ताप्ती नदी तट पर जो है पटन का पास, मध्य प्रदेश में जो है भीम बेटिका भोपाल के पास और होशंगाबाद जिले में
जो है अधमगढ़ इस चट्टानी आड़ में पूरा पाषाण युग और मध्य प्राचीन युग के संबंध में औजारें प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि पाषाण युगीन स्थानों के भौगोलिक विभाजन के कारण हमें हर क्षेत्र में जो है कुछ न कुछ जो है पूरा पाषाण युग के जो है पूरी सामग्री जो है मिली है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मोटे तौर पर इलाहाबाद और वाराणसी के मध्य फैला क्षेत्र है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रही है। यहाँ मिले औजारों से प्राचीन जो है पाषाण युग से लेकर निरंतर आज तक जो है मानवीय जो है व्यवसाय के दर्शन हमें प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यदि पूर्व की ओर बढ़े तो असम और मेघालय गारो की पहाड़ी सहित वहाँ के आसपास के क्षेत्र में इतिहास पूर्व काल की जो है कलाकृतियों पाई गई है और बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अनेक स्थानों पर भी प्राचीन पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्राचीन पाषाण युग से जो संबंध औजार मिलने के समाचार मिले हैं हमें। तमिलनाडु में इसका मुख्य स्थल रहा है। कहते अधिक्रम मक्कस में जो है चिरंगपुर क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार पशुओं का शिकार और फलों और उसकी जड़ों से खाद्य सामग्री सहित करना माना गया है। अन्य शब्दों में उस युग के लोग मुख्यतः जो है शिकार और संग्रहकर्ताओं थे जिनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था। यानी वो शिकार करते थे और शिकार करते करते कई क्षेत्रों में पहुंच जाते थे और संग्रह करता थे, यानी कई चीज़ों को संग्रह करके भी रखना उनके मूल्य आधार थी, लेकिन फिर भी ये लोग जो थे अस्थायी नहीं थे। ऊपर की चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास पूर्व काल के प्राचीन पाषाण युग की सभ्यता लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में फैली हुई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवों को रूपांतरण की पद्धति, यानी जीवन जीने की क्या पद्धति थी, यानी जीवन यापन की पद्धति क्या थी। कहते हैं प्राचीन पाषाण युग के लोगों में जीवन को यापन के लिए शिकार और खाद्य सामग्री संग्रहित करने का चलन था। उन्होंने शिकार करने, कुतरने, काटने, खोदने और अन्य उद्देश्य के लिए औजारों का जो है साधारण औजार बनाए और उन्होंने जो है खानाबदोशों जैसे जीवन बिताया। और जहाँ पर भी पानी और आसानी से उपलब्धता के साथ साथ पेड़ पौधे पशु जैसे संसाधन की बहुलता मिली, उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित होते चले गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनके जीवन यापन की पद्धति के अंतर्गत। इस मैप से भी समझा जा सकता है कि जो प्राचीन पाषाण युग के स्थल कहाँ कहाँ थे। आप देख सकते हो, बुद्ध पुष्कर दिख रहा होगा आपको, जो है सिंधु घाटी, नदी घाटी भी दिख रही होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान था जहाँ पर ये लोग निवास स्थान अपना बनाए थे। साथ में आप देख सकते हो कि अमदागढ़ में होगा, जो है भीम बेटका में, ठीक है, और कुमोल और ऐसे ही नगा जो है कोंड में भी इनकी जो है मुख्य स्थान थी, रानीगुंड में। तो ये सारे क्षेत्र थे जहाँ पर इनका निवास स्थान के कुछ न कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा
फ़ायदा ना पहुँचाऊँ। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।